નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ગાલા હિન્દી પેપર 4 એનો સી અને ડી વિભાગ જોવાનો છે. આના આગળના વિડીયોમાં આપણે એ અને બી વિભાગ જોયો હતો. આજે સી અને ડી વિભાગ જોઈશું. તથા આપણી જે સાઇટ છે બાલાજી ક્લાસીસ જામનગર blogspot.com, જેની લિંક યુટ્યુબમાં આપણો જે વિડીયો છે એના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છેલ્લી લિંક આપેલી છે. એમાં એ અને બી મૂકેલા હતા, એની નીચે જ સી અને ડી વિભાગ પણ મૂકી દીધેલા છે. માટે જે વિદ્યાર્થીઓએ ન જોયું હોય તે જોઈ લેજો. એમાં લખવા હોય તો તમે લખી પણ શકશો. ઘણા વિદ્યાર્થી પીડીએફ માંગે છે, પણ એ પીડીએફ જ છે એક જાતની. એમ તમે ડાયરેક્ટ એમાંથી વાંચી શકશો, લખી શકશો, ગમે ત્યારે ઓપન કરી શકશો. તો આજે આપણે વિભાગ સી અને ડી જોવાનો છે. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો. જે વિદ્યાર્થી મિત્રો હજુ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તે સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અન્ય મિત્રોને પણ કરાવજો, જેથી આવા જ વિડીયો તમને મળતા રહે. તો સ્ટાર્ટ કરીએ. सी विभाग व्याकरण विभाग. निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए. मुख में राम बगल में छुरी. मतलब के कथनी और करनी में अंतर होना. केवू અને કરવું બે અલગ અલગ છે. વાત કંઈક ઓર કરવી અને કરવું કંઈક ઓર. कथनी और करनी में अंतर. निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए. दो पहाड़ों के बीच की जमीन, જેને ઘાટી કહેવાય. ગુજરાતીમાં આપણે જેને ખીણ કહીએ છીએ. બે પર્વતોની વચ્ચે રહેલી જગ્યા ઘાટી, ગુજરાતીમાં ખીણ. નિમ્નલિખિત સંધિ કો છોડીએ. એક માર્ક. અન્વેષણ, મતલબ કે અનુ પ્લસ એષણ. બરાબર યાદ રાખજો, અનુ પ્લસ એષણ. संधि को मिलाइए, संधि जोड़ो. वीर प्लस उचित, वीरोचित. वीर ने उचित, वीर ने योग्य, इन्हें वीरोचित कहवाय. निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. 2 मार्क, कारण के 1 मार्क अर्थनो, 1 मार्क वाक्यनो. कुंडली मारकर बैठना. साप कुंडली मारीने बेहे એટલે કે વીંટળાઈને બેહે. સાપ ફેણ ચડાવીને પોતાના પૂંછડાને વીંટાડીને બેસે અને કુંડલી મારીને બેસવું કહેવાય. પણ એનો અર્થ છે સ્થાયી રૂપ સે બેઠના, અથવા બીજો અર્થ છે પેર જમા કર બેઠ જાના, મતલબ કે સ્થિર બેસવું, એક જ જગ્યાએ બેસી રહેવું. વાક્ય છે મેરે મિત્ર કે ઘર આયે મહેમાન 8 दिनों तक कुंडली मारकर बैठ गए, मतलब કે 8 દિવસ સુધી એકને એક જગ્યાએ રહ્યા. નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરોધી શબ્દ લીખીએ. 2 માર્ક. તપન, આની પહેલા પણ આવી ગયો તો. તપનનો વિરોધાર્થી થાય ઠંડક. ગુણવંત, એનો વિરોધાર્થી અવગુણી પણ કહી શકાય અને દુર્ગુણી પણ કહી શકાય. જે તમે લખો તે બંને ચાલશે. નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પર્યાયવાચી શબ્દ લીખીએ. મવેશી એટલે જાનવર અથવા પશુ. મવેશી એટલે જાનવર, જનાવર, જે આપણે પશુ, ઢોર. શિષ્ટ, શિષ્ટનો મતલબ છે સભ્ય અથવા સુશીલ. સંસ્કૃત, સુસંસ્કૃત જેને કહેવાય. શિષ્ટ, સભ્ય અથવા સુશીલ. निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए. 2 मार्क. बदलना तो बदलाव, बदलना तो बदलाव, અને ઉડના તો ઉડાન. ઉડના એનો ભાવવાચક ઉડાન થાય. निम्नलिखित शब्दों की विशेषण संज्ञा लिखिए. 2 मार्क. मखमल तो मखमली. बर्फ तो बर्फीला. मखमल तो मखमली, बर्फ तो बर्फीला. कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए. 2 मार्क. ऋण तो ऋणी. डाक तो डाकिया. ऋण तो ऋणी, डाक तो डाकिया. निम्नलिखित समास को पहचानिए. 2 मार्क. पुण्य भूमि, संबंध तत्पुरुष समास. पुण्य की भूमि એટલે કે સંબંધ તત્પુરુષ સમાસ. આ જીવન, આ જીવંતક, મતલબ કે અવયવી ભાવ સમાસ. આજીવન અવયવી ભાવ, પુણ્ય ભૂમિ, સંબંધ તત્પુરુષ સમાસ. હવે આપણો બીજો વિભાગ છે ડી, લેખન વિભાગ, જે મોટો વિભાગ હોય છે, વધુ માર્ક આપનારો છે. નિમ્નલિખિત સંક્ષિપ્ત ટિપ્પણી લીખીએ. અહીંયા તમને 2 માંથી 1, જેને આપણે પ્રયોજનમૂલક હિન્દી કહીએ છીએ, એમાંથી 1 આપેલું હોય. અહીંયા આપ્યું છે DTP, જેનો મતલબ છે ડેસ્કટોપ પબ્લિશિંગ, કમ્પ્યુટર માટે.
अन्य क्षेत्रों की तरह मुद्रण एवं प्रकाशन जगत में भी जबरदस्त क्रांति हो गई है। मुद्रण એટલે છાપવું, પ્રકાશન એટલે બહાર પાડવું, ચોપડી છાપીને બહાર પાડીએ ને એને પ્રકાશન કહેવાય, અને મુદ્રણ એટલે એ ચોપડી છાપે તે। એમાં ક્રાंति मतलब કે એમાં પણ પરિवर्तन આવી ગયું। डीटीपी के आविष्कार के साथ अब कंपोजिंग का सारा कार्य एक मेज पर करना मुमकिन हो गया है। पहला તમારે આખું એના બીબા બનાવવા પડતા અને છાપવું પડતું, હવે કમ્પ્યુટર ઉપરથી બધું થઈ જાય। पर्सनल कंप्यूटर पर विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की मदद से डिस्क कार्ड लगाकर या प्रकाशक आदि सॉफ्टवेयर के प्रयोग से टंकित सामग्री को विभिन्न पृष्ठों में विभाजित करना सरल हो गया है। टंकित એટલે છાપેલી કહી શકાય એવી, जुदा जुदा पृष्ठ जुदा जुदा पेज ऊपर छापवा सहेલું પડી ગયું। वर्तनी जांच मतलब के स्पेलिंग चेक की मदद से टंकित सामग्री संशोधित की जा सकती है। તમારી ભૂલ છે કે નહીં એ પણ તમે જોઈ શકો સ્પેલિંગ ચેકની મદદથી। सामान्य कंप्यूटरों के साथ उपलब्ध डॉट मेट्रिक प्रिंटर मतलब के बिंदु मुद्रक पर बढ़िया किस्म की छपाई नहीं होती। डॉट मेट्रिक प्रिंटर आवतुं जेमां पट्टी होय, जेने रिबिन कहेवाय, ई रिबिन मां डॉट डॉट थी छपातुं होय। ई सस्तुं पड़े पण एनी एटली बधी सारी क्वॉलिटी न होय ए ज कहे छे। इसलिए हवे लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। कलर प्रिंटर की मदद से रंगीन छपाई भी अब संभव हो चुकी है। तो हवे डीटीपी मतलब के अहींया छाप छपाईमां घणो बधो फेर आवी गयो छे। अथवा एना अथवामां आपणे जोवानुं छे आकाशवाणी। आकाशवाणी मतलब रेडियो। तो आकाशवाणी भारत सरकार के रेडियो प्रसारण सेवा का नाम है। आकाश से सुनाई जाने वाली वाणी जो विशेष यंत्रों द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से कार्यक्रमों के रूप में प्रसारित की जाती है। खास करीने आना माटे टावर होय, ई टावर द्वारा तरंगो फेंकी अने आपड़ा सुधी रेडियो सुधी पहुंचे छे। आपड़ा रेडियो जे होय तेमां रेडियो यंत्र द्वारा उसकी तरंग लंबाई को पकड़कर सुनी जाती है। सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था। इसकी सहायता से देश विदेश में होने वाले कार्यक्रम सुन सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो, बीबीसी, लंदन जैसी संस्थाएं समाचार, हवामान तथा कार्यक्रम का प्रसारण करती है। आ बधी चैनल छे रेडियोनी। अब रेडियो द्वारा हम गीत, समाचार, अन्य कार्यक्रम तथा विज्ञापन सुनते हैं। आ कदाच आगळना पेपरमां पण आपणे जोयुं हतुं। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 6 मार्क। खास जोवानुं छे पेरेग्राफ व्यवस्थित पहेला वांची लेवानो छे। आपणे दर वखते कहीए छीए तो आपणे पेरेग्राफ वांची लईए। गीता जीवन की कला सिखाती है। जब मैं देखता हूं कि हमारा समाज आज हमारी संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों की अवहेलना करता है, अवहेलना करवू एटले अवगणना करवू, तब मेरा हृदय फटता है, एटले के दुखी थाय छे। आप चाहे जहां जाइए परंतु संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों को सदैव साथ रखें। संसार के सारे सुख क्षण भंगुर एटले के एकदम टेम्पररी है, थोड़ी वार माटेना छे, क्षण माटेना छे, गमे त्यारे नाश पामे ये सुख। एवं अस्थायी होते, कायमी सुख रहेवानुं नथी कोईने। वास्तविक सुख हमारी आत्मा में ही है। चरित्र नष्ट होने से मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाता है। संसार के राज्य पर विजयी होने पर भी आत्मा की हार सबसे बड़ी हार है। तमे कदाच संसारना कोई पण राज्यने जीती ल्यो पण तमारो आत्मा हारी जाए तो ये मोटा मोटी हार छे। यही है हमारी संस्कृति का सार बोध, जो अभ्यास द्वारा सुगम बनाकर कार्य रूप में परिणत किया जा सकता है। हवे आपणे प्रश्न एमां 47मो छे, लेखक का हृदय कब फटता है? तो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों की अवहेलना करते देखकर लेखक का हृदय फटता है। त्यार पछी 48, संसार के सारे सुख कैसे होते हैं? संसार के सारे सुख क्षण भंगुर तथा अस्थायी होते हैं। मनुष्य का सब कुछ कब नष्ट हो जाता है? चरित्र नष्ट होने पर मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाता है। 25, संस्कृति का सार क्या है? संस्कृति का सार यह है कि
संसार के राज्य पर विजयी होने पर भी आत्मा की हार सबसे बड़ी हार है। जीवन की कला कौन सिखाता है? गीता जीवन की कला सिखाती है, अथवा जीवन की कला गीता सिखाती है। 52, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। गीता का संदेश। निम्नानुसार पत्र लिखिए। 5 मार्क। अशोक विला, कुबेर नगर, राजकोट। 3-9-5-003 से राकेश शाह परीक्षा में असफल हुए अपने मित्र सुभाष दवे को आश्वासन पत्र लिखता है। नापास થયેલ હોય એને આશ્વાસન આપવાનું છે। અશોક વિલા, કુબેરનગર, રાજકોટ 3-9-5-003 2 मई 2021। પ્રિય સુભાષ, સપ્રેમ નમસ્કાર। તમે प्रिय मित्र सुभाष एम पण लखी सको छो। आज ही तुम्हारे बड़े भाई के पत्र से मालूम हुआ कि तुम अपनी वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हो। यह जानकर मुझे और भी दुख हुआ कि इस कारण से आजकल का तुम बहुत उदास रहते हो। अहियां एवुं छे, इस कारण से आजकल तुम बहुत उदास रहते हो। प्यारे सुभाष, परीक्षा में असफल होने से दुख होना स्वाभाविक है, पर तुम तो बड़े समझदार हो। क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्य के जीवन में छोटी मोटी असफलताएं तो आया ही करती है, उनसे निराश होना कायरता है। मनुष्य के जीवन की सार्थकता अव्वल એટલે सारी श्रेष्ठ सफलता में नहीं, किंतु उच्च ध्येय में है। तुम्हारा ध्येय हमेशा उच्च रहना चाहिए। मित्र सुभाष, इस वर्ष तुम्हारे अभ्यास में कितनी बाधाएं पहुंची है। वर्ष के प्रारंभ में ही तुम्हारी माताजी 2 मास तक बीमार रही, फिर पिताजी की बदली हो जाने से तुम्हें अभ्यास के साथ घर के कई छोटे मोटे काम करने पड़े। दूसरे सत्र में दुर्भाग्य से तुम स्वयं टाइफॉइड के शिकार हो गए। टाइफॉइड ताव આવી ગયો। પેલા માતા 2 મહિના બીમાર રહી, પિતાજીની બદલી થઈ ગઈ, ઘરનું કામ કરવું પડતું હતું। બીજા સત્રમાં એને તાવ આવી ગયો। इस परिस्थिति में तुम्हारी असफलता के लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं समझता, उल्टे मैं तो तुम्हारे धैर्य और पुरुषार्थ की कद्र करता हूँ। कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ चले आओ। तुम सबसे पहले अपने दिल की बेचैनी निकाल दो, फिर से पढ़ने में जी लगाओ। मेरा विश्वास है उच्च सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। यहाँ सब कुशल है। मैं तुम्हारे पत्र की राह देखूंगा। तुम्हारा मित्र राकेश शाह। ત્યાર પછી रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। तो अहिया एक बकरी का बच्चा, नदी के किनारे पानी पीना, एक भेड़िए का देखना, खाने की इच्छा। बोला, तू पानी गंदा करता है। जवाब, नहीं, पानी का बहाव तो मेरी ओर है। तूने पिछले साल गाली दी थी, मैं तो अभी 6 महीने का ही हूं। अच्छा, तो तेरे बाप ने गाली दी होगी। बच्चे को मारकर खा जाना। बोध और शीर्षक। कहानीનું शीर्षक છે લુચ્ચા ભેડિયા અથવા તો ભેડિયે की ચાલાકી। झगड़ालू भेड़िया पण कही शकाय, कारण के अहींया एनो आखू स्वभाव ज एवो छे। एक सुंदर और घना जंगल था, उसमें कई तरह के प्राणी रहते थे। उसी जंगल में एक भेड़िया और एक बकरी का बच्चा भी रहता था। एक बार एक भेड़िए की नजर एक बकरी के बच्चे पर पड़ी, जो नदी में पानी पी रहा था। भेड़िए ने उसे खाने की एक युक्ति सोची। भेड़िया मेमना मतलब के बकरी नो बच्चू मेमने के नजदीक जाकर बोला, तुम मेरे पीने का पानी गंदा कर रहे हो। मेमना डर गया और बोला कि आप जहां पानी पी रहे हैं उसका बहाव तो मेरी तरफ है, तो मैं पानी को गंदा नहीं कर रहा। भेड़िए की इस चाल नाकाम हुई।
એને એમ હતું કે હું વાંક કાઢીને मारी लीस। फिर भेड़िए ने दूसरी चाल चली। भेड़िए ने कहा चलो छोड़ो, ये बताओ तुमने मुझे 1 वर्ष पहले गाली क्यों दी थी। बच्चा फिर से डर गया और बोला महोदय 1 वर्ष पहले तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मेरा जन्म तो अभी 6 महीने पहले हुआ है। तब भेड़िए ने कहा तो तुम्हारे पिता ने मुझे गाली दी होगी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इस प्रकार भेड़िया बकरी के बच्चे को खा गया। बुद्ध, जिसको झगड़ा करना है उसको किसी कारण की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि झगड़ालू लोग झगड़े का कोई न कोई कारण खोज ही लेते हैं। એને કારણની જરૂર જ ન હોય, ગમે ત્યાંથી કારણ શોધી લે। એને માત્ર સામેવાળી કોઈ વ્યક્તિ હોવી જોઈએ બાજવા માટે, બસ કારણ अपने आप ગોતી લે, પોતાની મેળે ગોતી લેતા હોય છે। निम्नलिखित किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। 150 वर्ड्स 150 शब्दों में निबंध लखवानो छे। एमा पहलो छे यदि मैं परीक्षक होता। परीक्षक नो मतलब छे पेपर चेक करनार। अहींया आपणे पॉइंट आप्या छे विचित्र कल्पना, परीक्षक के गुण, मैं कैसा परीक्षक न होता, परीक्षा का महत्व, मेरा आदर्श, उपसंहार। हवे आ पॉइंट उपरथी आपणे निबंध केवी रीते लखीए ते जोईए। उत्तर, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परीक्षा का बहुत महत्व है। परीक्षा की सार्थकता का मुख्य आधार योग्य और अच्छे परीक्षकों पर है। सार्थक एटले के सारी अर्थसभर बने अने सफल बने एना माटे योग्य अने सारा परीक्षक पेपर चेक करना ऊपर है। अतः एटले मैं यह दिखाना चाहता हूं कि यदि मैं परीक्षक होता तो किन आदर्शों को अपने सामने रखता, क्या आदर्श ऊपर हालता। सचमुच एक परीक्षक को तलवार की धार पर चलना पड़ता है। परीक्षक अपने ज्ञान और बुद्धि से साधारण और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की योग्यता का मूल्यांकन करता है। अहींया तलवारनी धार ઉપર એટલા માટે ચાલવાનું કે પેપર જોતી વખતે કોઈને અન્યાય ન થાય એ જોવાનું છે, બધાનું સંતુલન જળવાઈ રહેવું જોઈએ। એટલા માટે इस काम में उसे बहुत सावधानी और विवेक से मतलब कि बुद्धि थी काम लेना पड़ता है। परीक्षक के लिए भी न्यायाधीश के समान निष्पक्षता और संतुलित मस्तिष्क की आवश्यकता है। जेम न्यायाधीश समान न्याय आपे बधाने एवी रीते परीक्षके पण समान गुण जेनी आवडत होय ई मुजब आपवाना होय। जेम न्यायाधीश जे गुनो कर्यो ई मुजब सजा आपे एम आपणे जे लखेलुं होय ई प्रमाणे परीक्षके मार्क आपवो आपणे। यदि मैं परीक्षक होता तो सबसे पहले अपने आप में आदर्श परीक्षक के सब गुणों का विकास करता। मैं उन परीक्षकों की तरह न होता जो उत्तर वहियों को इधर उधर थोड़ा बहुत देखकर या किसी की सिफारिश पर એટલે કે લાગવગથી अंक रखते चले जाते, फटाफट जोता जाए जेम तेम અને मार्क मुकता जाए। मैं उन परीक्षकों के समान भी न होता जो उत्तर पुस्तिका को जांचना बाएं हाथ का खेल समझते हैं कि હવે એમાં શું હોય। હવે उत्तर पुस्तिका को जांचना बाएं हाथ का खेल समझते हैं, फटाफट જોઈ નાખે और विद्यार्थियों की किस्मत से खेलते हैं એટલે કે એનો જે નસીબ છે એની સાથે ચેડા કરે છે એમ કહીએ તો પણ ચાલે। विद्यार्थी का नाम देखकर और नंबर या चेहरे को याद करके अंक ले वाले परीक्षकों को भी मैं कभी पसंद नहीं करता। अहींया देने वाले आवशे अंक देने वाले, जो नंबर जोईने के एने चेहरो याद करे कि भाई आ विद्यार्थीनुं पेपर छे तो एवी रीते अंक एटले के मार्क देने वाले परीक्षकों को भी मैं कभी पसंद नहीं करता। अंक देते समय जो कुछ लिखा हो उसी को मैं अपने सामने रखता। जे लिखो ई मुजब देवाना छे। परीक्षक विद्यार्थियों का भाग्य विधाता है, उसका निर्णय विद्यार्थियों के लिए वरदान या अभिशाप है। का फायदो ही थाय का एने नुकसान थाय, तमे साचो निर्णय लियो एना उपर आधारित छे। मैं यह कभी न भूलता कि विद्यार्थियों और अध्यापकों के स्तर में फर्क होता है, कारण के विद्यार्थी नानो होय, अध्यापक मोटा होय, बुद्धि में घणो फेर होय। विद्यार्थी की शक्ति, समझदारी और उत्तर देने की योग्यता सीमित है, लिमिटेड है। अतः उनके स्तर को ध्यान में रखकर ही मैं उत्तर पत्रों को जांचता एटले चेक करता
मैं परीक्षक के रूप में विद्यार्थियों को कोमल और आशापूर्ण हृदय को कभी चोट न पहुंचने देता, એટલે કે બહુ ખોટા માર્ક પણ ન દેતા, વધારે પણ નહીં ને ઓછા પણ નહીં, उदार और न्यायी दृष्टिकोण रखकर मैं सदा उन्हें अधिकाधिक अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता, વધુ વધુ એને પ્રોત્સાહિત થાય એવું કામ કરતો માર્ક આપીને। परीक्षक बनकर मैं सभी प्रकार के प्रलोभनों से मुक्त रहता कि कोई મને પૈસા આપે કે એવું થાય એમ નહીં। आजकल कुछ परीक्षक रिश्वत, सिफारिश आदि के शिकार हो जाते हैं, किंतु मैं अपने कर्तव्य और ईमानदारी से कभी न चूकता, कभी किसी के दबाव में आकर कमजोर छात्र का समर्थन न करता, એટલે કે નબળો હોય એને પાસ કરી દો એવું ન બને, किसी योग्य विद्यार्थी की प्रगति में रुकावट न बनता। इस प्रकार अपनी संवेदना, दृढ़ संकल्प और संयम से मैं परीक्षार्थियों के भविष्य को बनाता, न कि अपनी दूषित मनोवृत्ति से उनका जीवन नष्ट करता। मैं अपने कर्तव्य के उस पहलू का सदा ध्यान रखता जिसका संबंध छात्रों के विकास, समाज की उन्नति और शिक्षा की प्रगति से है। આપણે એ પણ જોવાનું છે સમાજનો વિકાસ કેવી રીતે થાય, છાત્રોનો વિકાસ કેવી રીતે થાય, શિક્ષણમાં આગળ કેવી રીતે વધી શકીએ। काश मैं एक परीक्षक बन पाऊं और अपने इन आदर्शों को पूरा कर सकूं। अथवा छे मेरी प्रिय ऋतु। मेरी प्रिय ऋतु, भारत में ऋतुओं का क्रमिक आगमन आ मुद्दा है। प्रिय ऋतु का परिचय, प्रिय होने का कारण, अन्य ऋतुओं से तुलना, मेरी प्रिय ऋतु और मेरा जीवन, उपसंहार। અહીંયા આપણે શું કામે આપણને પસંદ છે એ પણ કહેવાનું છે, કઈ ઋતુ પસંદ છે એની હારે શું સંબંધ છે। તો ભારત ऋतुओं का देश है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, इन 6 ऋतुओं का जो सुंदर क्रम हमारे देश में है वह दूसरी जगह दुर्लभ है, घड़ीक में न મળે જોવા ત્યાં। प्रत्येक ऋतु की अपनी छटा है, एनी एक आखी अदा अनोखी है, एनु एक रुआब अलग है, अपना आकर्षण है। पर इन सभी ऋतु सुंदरियों में मुझे वसंत ऋतु सबसे अधिक प्रिय है। सचमुच बसंत की वासंती दुनिया, बसंत वसंत ऋतु जे कहेवाय छे एनी आखी वासंती दुनिया छे सबसे निराली है। शिशिर का अंत होते ही वसंत की सवारी धामधूम के साथ आ पहुंचती है। बागों में, वाटिकाओं में, वनों में प्रकृति वसंत के स्वागत की तैयारियां करने लगती है। कलियां अपने घूंघट खोल देती है, फूल अपनी सुगंध बिखेर देते हैं, भौरे એટલે કે ભમરા गूंज उठते हैं और तितलियां अपने चटकीले चमकीले रंगों से ऋतुराज, ऋतु का राजा, ऋतुराज वसंत ने ऋतुराज कीधी है, तो ऋतुराज का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाती है। पृथ्वी के कण कण में नया आनंद, नया उत्साह, नया संगीत, नया जीवन नजर आता है। जब सारी प्रकृति वसंत में झूम उठती है तब मेरा मन क्यों न झूमे। सचमुच वसंत की शोभा मेरे हृदय में उतर आती है। एक ओर शीतल, मंद, सुगंधित पवन के मधुर झोंके मन को मतवाला करते हैं, तो दूसरी ओर फुलवारियों का यौवन बूढ़ों को भी जवान बना देता है। खिलती कलियां देखकर मेरे जी की कली भी खिल उठती है। न तो यहाँ गर्मी की बेचैनी है, न जाड़े की ठिठुरन, कारण के एवो समय હોય गर्मी पण न लागे अने ठंडी पण न लागे। ठिठुरन એટલે કે ધ્રુજવું। एक और प्रकृति के रंग और ऊपर से रंग भरी होली, कारण के હવે होली आवे। अबीर गुलाल के रूप में मानो हृदय का प्रेम ही फूट पड़ता है। ऐसा मन भावन फागुन का वसंत मुझे प्रिय क्यों न हो। कुछ लोग वर्षा को वसंत से अच्छा मानते हैं, पर कहाँ वर्षा का किचपिच मौसम, मतलब के कादव कीचड़ वाळू किचपिच આપણે હાલીએ તો પૂછપૂછ થાય, और कहाँ वसंत की बहार, वह वर्षा जो घरों को धराशायी करती है, घर पाड़ी दिए, घणी बार फसलों पर पानी फेरती है, पानी फेरवी दिए, આપણે खबर છે फसल એટલે पाक ऊपर, नदियों को पागल बनाकर गांव के गांव साफ कर देती है। सुख कर कैसे हो सकती है, आवी આપણે सुख आपे, आनंद आपे एवी ऋतु क्यांथी हुई वर्षा। इसी प्रकार शरद की शोभा भी वसंत श्री के सामने फीकी पड़ जाती है। वसंत सचमुच ऋतुराज है। अन्य ऋतु ये उसकी रानियां या सेविका ही हो सकती है।
मैं तो वसंत को जीवन की ऋतु मानता हूं। उसका आगमन होते ही मेरा मन इंद्रधनुष सा रंग बिरंगा बन जाता है। इंद्रधनुष मेघधनुष्य जेवू रंग बेरंगी थई जाए और मेरी कल्पना रेशमी बन जाती है। एकदम मुलायम कल्पना चालू थी जाए। बागों में सैर करते मन नहीं भरता। मेरी आंखों पर प्रकृति के आकर्षण का चश्मा लग जाता है। इतलू आकर्षण था प्रकृति प्रत्ये। और मेरे दिल में उमंगों का सूर्योदय होता है। कोयल के गीत मुझे कविता लिखने की प्रेरणा देते हैं। फूल मन को खिलना और होठों को हंसना सिखाते हैं। तितली फूलों को प्यार करना और भंवरे गुनगुनाना सिखाते हैं। ऐसी अनोखी मन भावनी है मेरी प्रिय वसंत ऋतु। मैं साल भर इसकी प्रतीक्षा करता रहता हूं। एना अथवामां छे स्त्री सशक्तिकरण। मुद्दा जोई लीए। नारी तू नारायणी। प्राचीन भारत में स्त्रियों का स्थान, हमारी सांस्कृतिक परंपरा, पुराने जमाने के कुरिवाज, आज समाज में स्त्रियों की अवदशा मतलब स्थिति, स्त्रियों के विशेष गुण, हमारा कर्तव्य, उपसंहार। चालू करिए अपने निबंध। संसार एक रंगमंच मतलब के स्टेज है और मनुष्य उस पर अपनी कला दिखाने वाले कलाकार है। दुनिया, संसार, जगत रंगमंच स्टेज है ने आपणे बधा मनुष्य कलाकार छीए। एना उपर कलाकारी गराई देखाड़वा वाळा। इसमें पात्र, कारण के नाटक जेवुं रंगमंच एटले नाटक एक जातनुं, तो एमां पात्र पुरुष और महिला दोनों है। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी देश को विकसित करने में विशेष भूमिका निभाई है। भारतीय समाज में महिलाओं की अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। प्राचीन भारत का इतिहास नारी गौरव की कहानियों से पड़ा है। पहला जमाना में तो स्त्री सम्मान एनो गौरव जाळववामां आवतुं हतुं। एनी घणी बधी वातो छे। मनुस्मृति में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, वसवाट करते हैं, रहते हैं। उपरोक्त कथन महिलाओं के महत्व को दर्शाता है, उन्हें सम्मान देता है। जिस समाज में महिलाओं का उच्च स्थान और सम्मानजनक होता है वे उतना ही प्रगतिशील और विकसित होता है। परिवार और समाज के निर्माण में महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण है। जब समाज मजबूत और विकसित हो तो राष्ट्र भी मजबूत होता है। इस प्रकार महिलाएं भी राष्ट्र निर्माण में केंद्रीय मतलब के मुख्य भूमिका निभाती है। मां के रूप में स्त्री प्रथम गुरु है। इसलिए तो कहा गया है कि एक मां 100 शिक्षक के समान होती है। मां के समान कोई गुरु नहीं होता। वैदिक काल में भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा और सम्मानजनक था। तब स्त्री साक्षर मतलब के भणेली, साक्षर होकर विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ मतलब के शास्त्रोनी एक बीजा ने प्रश्नों पूछे नो जवाब आपे ने शास्त्रार्थ कहवाय भी करती थी। लेकिन समय के साथ महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई। मध्य युग में जયારે मुसलमान राजा था એટલે કે મુગલો આવ્યા ત્યારે એ જમાનો હતો એને મધ્ય યુગ કહેવાય છે। એ મધ્ય युग में उनकी स्थिति अत्यंत खराब हो गई। कई कुरिवाजे भी प्रचलित थे जैसे कि दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, स्त्रियों में निरक्षरता, कारण के न भणावी એટલા માટે। इन सब में स्त्रियों को ज्यादा सहन करना पड़ता था बधामा, कारण के नियमों स्त्रियों माटे ज लागू पड़ता था। आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई कानूनी प्रयास किए गए, लेकिन सामाजिक स्तर पर सुधार न होने का मुख्य कारण हमारी मर्दाना मानसिकता, पौरुषत्व आपणे के पुरुष ज मुख्य है, ई मानसिकता नड़े है, जिसे हम बदल नहीं पाए हैं। महिलाओं के प्रति समाज का रवैया मतलब के समाज नो जे व्यवहार है बहुत ही निम्न हो गया है, जिससे वैदिक काल में नारी का स्थान उच्च स्तर पर था और आज उनके सशक्तिकरण की आवश्यकता है। बराबर याद रखजो। कारण के पेला उच्च स्थान पर हतुं એટલા માટે આજે એને सशक्तिकरणની જરૂર છે। महिला सशक्तिकरण का मुद्दा न केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों में चिंता का विषय रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 8 मार्च 1975 से महिला दिवस की शुरुआत की गई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कई महिला सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किए जाते हैं।
महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ है घर, परिवार, समाज और राष्ट्र में महिलाओं को उनकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता का योगदान लेना। आ बधामां आपणे एनुं योगदान लेवानुं छे। आर्थिक रूप से अपने पग पर खड़ी रह सके। आज की स्त्री चाहे तो सब कुछ कर सकती है। आज स्त्रियों का मान सम्मान समाज में बड़ा है। महिला सशक्तिकरण अर्थ है कि इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती है, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर एक फैसले स्वयं ले सके और परिवार और समाज में अच्छे से रह सके। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। स्त्रियों में कई सारे गुण होते हैं, उसके जितनी सहन शक्ति पुरुषों में नहीं होती। वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, देश को विकसित करने में अपना योगदान दे सकती है और उनके इरादे दृढ़ होते हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि स्त्रियों को आगे बढ़ने का अवसर दे, उसको अपनी तरह से जीने दे, शिक्षा का मौका दे, पूरी स्वतंत्रता देनी जरूरी है, तभी वे अपने पग पर खड़ी हो सकेगी। हम आशा रख सकते हैं कि आने वाले समय में स्त्री सशक्त होंगी। तो અહીંયા આપણા ચોથા પેપરનો C અને D વિભાગ પૂરો થાય છે। હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે ફરીથી મળશું।